आपके सवाल। इस खास कार्यक्रम में अगले 1 घंटे के दौरान हम फोन लाइंस खोल रहे हैं, सीधे आपसे संपर्क करेंगे। और मंगलवार शाम 8 बजे से जिस एक मुद्दे पर सारे देश में चर्चा हो रही है वो है कि जो 500 और 1000 रुपए के नोट हैं वो ताजे यानी नए 500 और 2000 के नोट से बदले जा रहे हैं। इस खास सीरीज में डीडी न्यूज ने आपकी समस्याओं को सीधे समाधान करने की कोशिश के तहत इस कार्यक्रम को आपके लिए लेकर के आया है। तो अगले 1 घंटे के लिए अपनी फोन लाइन्स हम खोल रहे हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर थोड़ी देर में फ्लैश होंगे। नंबर्स नोट कर लें, 011-2338-7091 और 011-2338-7682। तो अपने सवाल आप तैयार रखिए। मैं हूं अजय मिश्र, अब मेरे साथ है मेरे सहयोगी शुभेंद्र घोष। Right, thank you, Ajay. Absolutely. Good evening. And after Prime Minister Modi's surgical strike on black money, the onus on the bank and finance sector authorities has increased to ensure that this transition to new 500 and 2000 rupee notes is smooth. Now, needless to say, cooperation by the masses, that is all of us, is of paramount importance. Now, there will be inconvenience, queries, but through this program, we will try and ensure that there is absolutely no room for confusion. Our phone lines are open for your questions. The number is 011-2338-7091 and 011-2338-7682. Now, RBI has issued a list of FAQs or frequently asked questions that clears common doubts on the issue. Let's start the program with that first. And the questions are like this. The question is, how much value will I get for 500 and 1000 rupee notes? The answer is, you will get value for entire volume of the notes. And the next question says, where can I go to exchange notes? Now, exchange facility at all RBI branch offices, bank branches and post office branches. Next, need I go to my bank branch only? Now, for exchange up to 4,000 in cash, go to any bank branch with valid identity proof. And need I go to my bank branch only? As we discussed, for exchange up to 4,000 through credit to bank account only, you may go to branch where you have an account or to any other branch of the same bank. And can I withdraw from ATM? Well, the answer is, once ATMs are functional, you can withdraw from ATMs up to a maximum of 2,000 per card per day. And can I withdraw from ATM? Limit is to be raised to 4,000 per day per card from 19th November 2016 onwards. Can I withdraw cash against check? Yes, you can withdraw cash against withdrawal slip or check, subject to ceiling of 10,000 in a day. And can I withdraw cash against check with an overall limit of 20,000 in a week, including withdrawals from ATMs up to 24th November 2016, after which these limits are to be reviewed. And those are the important FAQs that RBI has put, and we'll be looking at more questions, of course, later in the show. तो चलिए अब जो हमारे खास मेहमान है इस कार्यक्रम में उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है सुबोध कौशिक साहब, जो कि फॉर्मर जनरल मैनेजर हैं पंजाब नेशनल बैंक के। बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक साहब इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप करेंसी एक्सचेंज प्रोग्राम से जुड़े भी रहे हैं और जो लगातार जो इस मुहिम पर आपने लगातार नजर बनाए रखी। और हमारे साथ अशोक कुमार भट्टाचार्य जी, जाने माने वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार, बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी उलझन इस करेंसी एक्सचेंज प्रोग्राम को लेकर के है, यानी नए नोट और नए पहल जो सरकार ने की है उसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन अगर आपके पास दिमाग में है, तो आप सवालों का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। ये जो नोट है वो बाजार में आ चुका है। 1000 का नोट, 2000 का नोट फिलहाल मेरे हाथ में है। 500 के नोट आज कम से कम नहीं मिल पाए मेरे पास। और जो सवाल है उसका हम सिलसिला शुरू करेंगे। सुबोध जी, लेकिन आपसे शुरू करते हैं। ये जो पहल की है, आप ओवरऑल कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से देखते हैं सरकार को, और कंज्यूमर्स को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्या कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं शुरुआत में? देखिए, अभी ये शुरुआत है और वो ये शुरुआत आज से ही हुई है। तो शुरू में चूंकि एक चीज का बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि ये बहुत ही टेम्परेरी पीरियड है जिसके अंदर ये समस्याएं आएंगी, और इस पीरियड में किसी को भी इसकी होर्डिंग नहीं करनी चाहिए, मेरा ये कहना है। क्योंकि अभी क्या हुआ है कि जैसे 2000 का नोट आपने दिखाया, अब इस 2000 के नोट को लेकर आप बाजार में जाए, जब आप 1000 रुपए का नोट दे रहे थे, आपको तुरंत छुट्टा मिल रहा था। ठीक है, 300, 400, 500 की आप चीज खरीद रहे थे, बाकी छुट्टा आपको मिल रहा था। तो छुट्टा है बाजार के अंदर। पर जब आप 2000 रुपए दे रहे हैं तो वो कहता मेरे को छुट्टा देने के लिए नहीं है, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि जो चल रहा है नोट वो छोटी डिनोमिनेशन का है और मुझे उस नोट को बचा के रखना है। तो ये नहीं करना है। हमें जो भी हमारे पास उपलब्ध है उसका उपयोग करना है, और जो छोटे नोट हैं उनको सर्कुलेशन में रखना है।
जमा भी कराना, निकालना भी है। So we'll continue with that. We're getting a call from Sultanpuri. Pradeep is on the phone line. Pradeep, please ask your question. जी जी, सबसे पहले मैं दूरदर्शन को धन्यवाद दे रहा हूं कि ऐसे प्रोग्राम उन्होंने आज लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर हमारे पास कुछ बैलेंस है तो क्या मैं उसको ग्रामीण बैंक में ले जाके, अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ अगर पैसे हमारे पास हैं तो उसको हम ग्रामीण बैंक में जमा कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, देखिए, इसमें ग्रामीण बैंक में कराएं या आप किसी अन्य बैंक में कराएं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने क्लियरली कहा है कि देखिए, ये जो एग्रीकल्चर इनकम है ये टैक्स से फ्री है, और अगर आप पोटली बना के घर में रखेंगे तब भी टैक्स से फ्री है, और आप इसको बैंक में जमा कराएंगे तब भी टैक्स से फ्री है। बैंक में जमा कराने का लाभ यह है कि न ये चोरी होगी, न इसको दीमक खाएगी, न और किसी तरह से नुकसान होगा, और इस पर ब्याज भी मिलेगा आपको। तो आप निश्चिंत होकर के इसको जमा करा सकते हैं और आरआरबी में भी जमा करा सकते हैं। चलिए, तो ग्रामीण बैंकों में जाकर के आप जमा करा सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी जो है उसको सामना नहीं करना पड़ेगा। No, yeah, I mean, I would tend to agree with that. जमा तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो नोट जो है वो पुराने नोट हैं, तो उसकी वैल्यू तो अब जीरो हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको ब्याज मिले ना मिले, इंसेंटिव यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट गेट रिड ऑफ ऑल द ओल्ड नोट्स। सो ये पुराने नोट को आपके पास नहीं रखने चाहिए, और जाकर ग्रामीण बैंक हो, आरआरबी हो, या जो भी बैंक आपके पास, पोस्ट ऑफिस हो, वहां पे जाकर जमा कर दें। टैक्स का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है इसमें। जमा कराना पहली बात कर्तव्य होता है आपका। Right, Mr. Bhattacharya, also as we move ahead in the program, it's important to just remind ourselves why we're doing this. What is the reason behind scrapping 500 and 1,000 rupee notes? The significance in rooting out corruption, fake currency and terror financing, what would you say on that, sir? Well, I mean, all the points that you mentioned are valid. I think the primary reason was black money. It does tackle the menace of black money at a stock level. When I say at a stock level, I mean not the flow level, which means the money that is already with people, which are unaccounted, that definitely it gets tackled by this. So whether it is with some terror organization, or whether it is somebody who has kept unaccounted wealth or income, or somebody who has tried to earn income but not reporting it. So that stock level is tackled, but flow level, I'm sure the government's fight against black money will continue, and more steps, as we understand, may be on the cards to tackle the flow of black money, which is the fresh generation of black money. Right. Because the 2,000 rupee that, as Mr. Ajay just now showed us, it doesn't mean black money is over. Even this 2,000 rupee can become black money if his next transaction is not put on record. तो अगर आप इस 2,000 रुपए का जो नोट है वो तो सर्कुलेशन में आ गया है, लेकिन अगर आप इस पे टैक्स पे नहीं करते हैं तो ये ब्लैक मनी हो जाएगा, और अगर आप ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं तो भी ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक, चलिए अब सीधे चलते हैं टोक्यो, जहां पर इंडियन कम्युनिटी से प्रधानमंत्री इस वक्त मिल रहे हैं। आपको सीधी तस्वीरें वहां से दिखाते हैं। Prime Minister Narendra Modi meeting members of the Indian community in Tokyo, Japan. He left for Tokyo this morning and he's on a 3-day visit to Japan, an important bilateral meet that is likely to lead to the signing of the civil nuclear deal with Japan. And we are bringing you the live visuals from Tokyo. Members of Indian community, very happy to be in company with Prime Minister Narendra Modi. और इस वक्त रात का वक्त है टोक्यो में, और इस वक्त भारतीय समुदाय के लोगों के साथ प्रधानमंत्री संबोधित करते हुए, बातचीत करते हुए, इंटरैक्ट करते हुए और मिलते हुए, एक जो भारतीयता की भावना है वो जब भी विदेश यात्रा पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं, जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनको एक सूत्र में पिरोने की कोशिश, एक साथ बांधने की कोशिश, और एक ही राष्ट्रीयता की जो भावना है उससे सभी को जोड़ते हुए अपने आप को भारत के साथ वापस जोड़ने की कोशिश करते हुए ये जो मुहिम जो चलाई गई है उसके तहत। अरुण शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अरुण, ये
एक बार फिर से हम भारत माता की जय और जो ये संवेदन है, एक तरह से जो एकीकरण है भारतीय समुदाय में, ये देखने को मिल रहा है। कोई खास बात वहां पर इस वक्त जो इंटरेक्शन कर रहे हैं प्रधानमंत्री? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भारत माता की जय की जो गूंज है वो यहाँ पे भी सुनाई दे रही है एक तरह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी गर्मजोशी के साथ स्वागत यहाँ पे किया है भारतीय लोगों ने। आपको बता दें कि लगभग 29,000 के आसपास भारतीय यहाँ जापान में बसे हुए हैं, जो कि अलग अलग सेक्टर्स में और क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ भी जिस देश में जाते हैं वहाँ पे भारतीय उनका पूरा गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं। शायद भारत के अपनेपन की उन्हें याद आ जाती है, शायद भारत की याद वो ताजा करा देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हैं तो सबसे पहली बात जो है भारतीय में छाई हुई है कि जिस तरह से काले धन को लगाम लगाने की दिशा के अंदर जो कारगर कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाए हैं उसकी सराहना हर जगह हो रही है। यहाँ पे जो भारतीयों से मेरी बात हुई है उन्होंने यही कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन को लगाम लगाने के लिए जो कड़ा कदम उठाया है भारत के अंदर, इस तरह के कड़े कदम की जरूरत थी, इस तरह की लीडरशिप की जरूरत थी जो अभी तक मिसिंग थी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर देखने को मिली है। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से यहाँ पहुंचे हैं तो जापान में रह रहे जो भारतीय समुदाय है उन्होंने उसका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। और जाहिर सी बात है कि कल वो एक तरह से जो पक्षीय वार्ता उनकी होगी यहाँ पे जापानीज लीडरशिप के साथ में। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, जो इंटरेक्शन होगा, जो कम्युनिटी रिसेप्शन है, जब वो भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे वो परसों होगा, जो इंडियन कम्युनिटी के साथ संबोधित करेंगे। Right, Arun, also this is Prime Minister Modi's second visit to Tokyo, to Japan. Give us an overall mood of the people in Japan, of the people from Japan and the Indian community that is there. How are the two countries coming together and how is it sealed? This bond is sealed with Prime Minister's second visit to the country. This is indeed the second visit of Prime Minister Narendra Modi. Last time when Prime Minister Narendra Modi visited Japan in 2014, at that time also it was the same kind of grand welcome by the Indians to Prime Minister Narendra Modi. Now the focus will also be on increasing the people-to-people ties, because at this moment when we talk about people-to-people tie, when we talk about connectivity, so that is something which will be on the Prime Minister Narendra Modi's agenda, because language is something which is a problem as far as India-Japanese relations are concerned. So there is a need to increase people-to-people connectivity, language barrier, and also a focus on other aspects so that people can come closer to each other. That's the one aspect. Right. Talking about the other important engagements and bilateral, if we talk about nuclear and defense, will be top on the agenda of Prime Minister Narendra Modi's visit, because last time in 2015, when Japanese Prime Minister Shinzo Abe visited India at that time, high-speed trains were much talked about and 16 agreements were... Right, Arun. Thank you very much for joining us with those inputs and bringing those live visuals from Tokyo. We'll continue with our program now. Finance Minister Arun Jaitley had allayed all the fears among people with respect to government's latest decision of nixing 500 and 1,000 rupee notes to curb the menace of black money. He was addressing the Economic Editors Conference in the national capital. Government has allayed fears that the deposit of small amounts of cash will invite scrutiny from authorities. Union Finance Minister Arun Jaitley, while addressing the Economic Editors Conference in the national capital, clarified that small deposits will result in no hassles to the common man, but added it is only those with large amounts of undisclosed money who will have to face the consequences under existing laws. It's only those who have large amounts of undisclosed monies who will have to face the consequences under the tax laws itself. And you already have the tax laws in place. Nothing new is intended. And under all our existing laws, whatever accountability they have, they will have to face that accountability. Finance Minister also said that government is trying to ensure the new currency notes are available for the people in time. He said RBI and banks have taken all the necessary steps to accommodate the people visiting the banks for exchange and deposits. Banks have opened today and people started to visit banks to exchange their 500 and 1,000 rupee notes. ATMs will be open from tomorrow. Economic Affairs Secretary Shaktikant Das has said that government will soon bring a newly designed 1,000 rupee note and the new design will be introduced for other denominations too. So if you are printing the same number of pieces in 2,000 rupees, it will enable us to change a higher value of currency within a short period of time. So the first reason was the logistical reason of making it convenient for the people to convert, to exchange their old notes. In the due course, in the next few months, the 1,000 rupee notes will also be brought into the market with a completely new design and new
new dimension, new design, new color combination, which will look distinctly different from the old one. On the economic front, the FM said it is the government's endeavour to make as many decisions as possible through a large consensus route. He said that government has been keen in assuring that subsidies reach the deserved. He added that since GST Council is a federal body, the decisions are completely based on consensus. Rather than resort to votings and divisions on every small issue, we've been trying to discuss, rediscuss, prolong discussions and then reach a consensus. And so far, most of the major issues we've been able to resolve through that consensus. Only the last stages remain, and I do hope we are able to resolve that by a larger consensus also. On the whole, Finance Minister made it clear that government is keenly working on the growth of economy and taking decisions with a broader consensus. Most importantly, it is clear that government is leaving no stone unturned to curb the menace of black money. Venkat Raman's report, DD News. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार सवाल और जवाब का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बताएं कि पटना से रवि कुमार हमारे साथ छपरा से इस वक्त जुड़े हुए हैं। रवि जी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका सवाल इस कार्यक्रम में लेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम नए नोट, नई पहल और आपके सवाल। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पहल, यानी जो नया नोट, नई पहल और आपके सवाल ले रहे हैं। छपरा सीधे चलते हैं और रवि जी का सवाल लेते हैं। शुक्रिया रवि, इतनी देर तक आप हमारे साथ बने रहे। पूछिए सवाल अपना। रवि, आप तक मेरी आवाज आ रही है? अगर आप इस मनी एक्सचेंज से जुड़ा कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो अगले 1 घंटे के दौरान हमारे फोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, 011-2338-6091 और 2338-7682। मुझे लगता है कि रवि से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से जब उनका सवाल हमारे पास आएगा। फिलहाल एक बार फिर से वापस लौटते हैं और इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो 2 एक्सपर्ट हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। सुबोध कौशिक साहब, जो कि इसी करेंसी एक्सचेंज प्रोग्राम के साथ पहले से ही एक तरह से जुड़े हुए हैं और पीएनबी से जुड़े थे अभी तक और अभी भी एडवाइजरी रोल निभा रहे हैं। कौशिक साहब, अगर इस वक्त देखें तो अब क्या लग रहा है आगे की जो दिशा है, अगर इस टीरिंग प्रॉब्लम्स को आप छोड़ दें तो फिर क्या एक बड़ा बदलाव आ रहा है? अगर मनी सर्कुलेशन की बात करें, मनी सप्लाई की सिनेरियो की बात करें, देखिए इसका जो सबसे बड़ा लाभ, सीधा लाभ जो देश को होने वाला है वो ये है कि जो टेररिस्ट फंडिंग हो रही थी, पहला तो उसके ऊपर सीधी लगाम लग गई। दूसरी चीज ये है कि इसमें जो पैसा ऐसा है जिसको कोई आकर के डिक्लेयर कर ही नहीं सकता आज की परिस्थिति में, क्राइम मनी जिसे क्राइम मनी जिसको कहते हैं, तो वो पैसा तो सीधे देश के विकास के लिए काम आएगा, क्योंकि उतना जो पैसा है वो रीइश्यू कर सकती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विदाउट एनी इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ठीक है, तो ये एक देश के लिए, और अगर नहीं करेंगे तो करेंसी उतनी मजबूत होगी, तो देश के लिए बहुत लाभप्रद है। और जो कल्याणकारी योजना सरकार चला रही है उनके लिए भी जो है फिर उसको स्ट्रेंथ मिलेगी। और जब हम इस पे इलेक्ट्रॉनिक मोड की बात कर रहे हैं, जब पैसा लोग जमा कराएंगे तो कोशिश ये है कि आगे इस चीज को एनकरेज किया जाए कि लोग जो है इलेक्ट्रॉनिकली फंड को ट्रांसफर करें। आजकल यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आ गया है, आप किसी भी बैंक से किसी भी बैंक के खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, और आने वाले समय में जब पेमेंट बैंक भी एक्टिव हो जाएंगी तो ये सुविधा और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। Right, sir. And if we again come back to the process right now, what would you say are the biggest challenges faced by the banking and post office officials, because they play a very important role now, and also the customers? What would you say are the common challenges being faced, and what remedies are being planned? So first thing is that it is a question of logistics, because smaller currency notes, they have to be redistributed across the country. Right. And once you receive this currency, then it has to reach the right hands. And currently, the first knee-jerk reaction, as I mentioned earlier, was that people have started holding the smaller denomination, which they should not do. Whatever they have been depositing back in the bank as a receipt, the smaller business also, they should keep it in circulation. That will help everyone. Right. Secondly, these difficulties are very short-term. Once the ATMs are functioning, the delivery of cash will become very smooth. And for your information, the smaller denomination notes are being configured in the ATMs now. 100 rupee, 50 rupee notes will be available through the ATM. They're going to be available in ATMs. Yeah.
So that will help alleviate the situation, and it will definitely help the public to actually go to the ATMs and take out the money as per their daily requirement. But Mr. Kaushik, you were talking about logistics. If I can just slip in a question on this quickly. If you talk about rural areas where reaching some places can be difficult, the transportation may not be that easy, what kind of efforts, what kind of arrangement has been made for such places where, one, reaching some areas may be difficult, also spreading awareness? We have a 50-day window to ensure that the older denomination notes are returned to banks. See, there are two things. One good thing which has happened is that this news has spread across the country. So even to the last point in the village, everyone knows that this facility has been now provided to exchange the notes. This is one good thing. Second thing which has happened is that we have a vast network of banking correspondents. Now they are being empowered, and the cash is actually reaching them also. When we are talking, the cash is already on the way. So they will be now given a higher limit. And in that higher limit, they will be able to exchange these 4,000 rupees at each of the locations. So you need not actually walk up to the branch also. No, you talked about wanted to know the impact this will have. Let me just list out at least 3 top impacts that this is going to have. Number one impact, as I see, and it's already begun happening from my own experience, is the digitization of the transaction business in this country. Now, a large number of shops have already moved in to the POS way of doing business. Right. And I think this is a very welcome move. If this actually forces more and more people to move in for a digital transaction, which is either an online transaction or even through a payment wallet to make a payment. Now, I think this is a movement that is waiting to get popularized in a manner in which the cashlessness of the economy becomes a movement. Right. I think that's the number one movement. Number two, as we all know, much of our black money resides not necessarily in cash, but also in bullion, which is gold, and other thing is real estate. And Mr. Bhattacharya, if you can take the third point after we speak to Sure. the MD of SBI, who's joining us from the Mumbai office, Mr. Rajneesh Kumar. Thank you very much, sir, for joining us in this special program, Nai Note, Nai Pehel, in DD News. The first question is about how are you dealing with the situation at present? There's a big movement going on in the country against black money, a lot of pressure on bank officials. How are you dealing with the pressure? Give us an overview first. करेंसी एक्सचेंज करने के लिए 4,000 रुपए की लिमिट रखी गई है। उसके लिए एक रिजर्व बैंक ने प्रारूप निर्धारित किया है, वो स्लिप भरनी है, वो बैंकों में अवेलेबल है सब जगह, उसको भरना है और अपना आईडी नंबर देना है। आप अगर अपना आईडी दिखा के और उसको आईडी नंबर नोट कर लिया जाएगा और स्लिप लेने के बाद आप 4,000 रुपए तक एक दिन में बदल सकते। और इसमें जिस तरह की व्यवस्था शहरों में की गई है वैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी की गई है, और जहां जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से करेंसीज की सप्लाई की गई है। और लगातार हम लोग ग्राउंड से फीडबैक ले रहे हैं। अगर कहीं कोई ज़रा सा भी शॉर्टेज या तकलीफ नज़र आएगा तो वहाँ पे करेंसी की व्यवस्था करी जाएगी। और इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के साथ भी हमारे लोग लगातार उनका जो करेंसी डिपार्टमेंट है उसके साथ टच में है। And anybody, if they have any doubts to be clarified, they can approach the helpline, and even if there is any difficulty, they can tell the helpline, and we will try that the difficulty gets resolved. Change करने के लिए तो खुद ही आना होगा और अपना ID देके और exchange लेना होगा। But if you want to deposit the money in the account and you are unable to come, you can send a representative with an authorization letter. And the person who you are sending, he must bring his identity. So 2 documents are required. One is the authorization letter and another is the identity proof of the person who will be tendering the cash. All right, Mr. Kumar, thank you very much for joining us with those input. MD SBI, Rajneesh Kumar, joining us from the Mumbai branch there. और दिल्ली से गिरीश उपाध्याय अपने सवाल के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पूछिए अपना सवाल। हाँ, नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा कि जो ये कदम उठाया है आम नागरिक के लिए बहुत बढ़िया है जी। थोड़ा आम आदमी नागरिक को थोड़ी परेशानी हो रही है कि जो सरकार ने जो एकदम कदम उठाया है उससे रोजमर्रा की जिंदगी, जैसे घर का दूध वगैरह या सब्जी वगैरह, जैसे ये सब की प्रॉब्लम
आम आदमी को थोड़ा क्रिएट हुआ है, मगर ये देश के लिए पीएम साहब ने बहुत बढ़िया कदम उठाया है। गिरीश जी, सवाल क्या है आपका? सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आम आदमी को है जिसके पास क्या बोलते हैं पहचान पत्र वगैरह नहीं है, जो दूसरे देश से यहाँ से आया है या उसको जैसे जरूरत पड़ती है, तो वो कैसे उसको पैसे एक्सचेंज कराएगा? क्या आईडी ही नहीं है उस पर? ऐसे हमारे देश में बहुत से लोग हैं जिनके पास एक शुक्रिया, आपका सवाल आ गया हमारे पास। गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया सवाल करने के लिए। कौशिक जी, आप सवाल लेना चाहेंगे? हाँ जी, देखिए आईडी का तो होना एक आवश्यकता है इसकी, और इसमें एक चीज और दी गई है कि आप चाहे तो अपने रिलेटिव, अपने रिश्तेदार के खाते में भी पैसा जमा करा सकते हैं, और उसके लिए जो है आपको एक पत्र लिखना होगा और उस रिश्तेदार को एक जो है सहमति पत्र देना होगा कि उनके खाते में आपका पैसा जमा हो सकता है। तो सरकार ने आम आदमी की सभी सुविधाओं का ध्यान रखा है और सभी जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है इसके उसको ध्यान में रखा है। तो इसलिए इस बारे में बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल आसान सी प्रक्रिया है। सिर्फ एक चीज है कि आप इसके लिए अपना धैर्य बनाए रखें। ये 2-4 दिन की समस्या है, कल से एटीएम भी शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे ये समस्या खत्म हो जाएगी। All right, we'll continue the series of questions and answers. Meanwhile, we'll take a short break here. More coming up in this special program. Nai Note, Nai Pehal. Stay with us. स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नए नोट नई पहल, और आपके सवाल और सीधे ये इंटरेक्ट करता हुआ आप तक पहुंचता हुआ। या आपका सवाल, अगर कोई भी सवाल आपके जहन में है, कोई भी उलझन आपके जहन में है, तो आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अब भी करीब 25 मिनट इस कार्यक्रम के बाकी हैं। आइए देखते हैं कि आरबीआई ने जो कुछ FAQs यानी जो सवाल जवाब, जो अक्सर पूछे जाने वाले सवाल हैं, उनको आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की है सरल भाषा में। और आइए ऐसे ही कुछ सवालों पर निगाह डालते हैं। तो पहला सवाल, नए नोट नई पहल, क्या आपके नोटों की जो कीमत है वो कितनी मिलेगी अगर आप बैंक में जाते हैं? तो आपको बैंक की शाखाओं या आरबीआई दफ्तर में नोट्स की पूरी कीमत मिलेगी, यानी 100 रुपए अगर आप देंगे तो पूरे 100 रुपए आपको मिलेंगे। कहां पर आप नोट एक्सचेंज कर सकते हैं? नोट बदलने की सुविधा आरबीआई का ऑफिस, कॉमर्शियल बैंक, आरआरबीज, यूसीबीज, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या किसी भी पोस्ट ऑफिस या सब पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में भी उपलब्ध है। तो एक सवाल जो दर्शक ने किया था कि ग्रामीण बैंक में जमा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मुझे केवल अपनी ब्रांच में जाना है? आप किसी बैंक की किसी भी ब्रांच में पैसे जमा करा सकते हैं। दूसरे बैंक की ब्रांच में जाएंगे तो 4000 रुपए से ज्यादा के लिए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए आपको अपने ही बैंक में डिटेल देनी पड़ेगी, अपनी आईडी प्रूफ देनी पड़ेगी, और उससे ज्यादा पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा, उससे ज्यादा आप ले नहीं सकते। क्या मैं अपने बैंक की किसी भी ब्रांच में जा सकता हूं? जी हाँ, आप अपने बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर के पैसे एक्सचेंज कराने के लिए आवेदन दे सकते हैं। कब तक आप एक्सचेंज कर सकते हैं ये नोट्स? ये स्कीम 30 दिसंबर 2016 तक खुली है, यानी अगले 50 दिन तक आप 500 और 1000 रुपए के जो पुराने नोट हैं उनको बदल सकते हैं। स्कीम के बारे में जो जानकारी और भी लेनी है वो आप rbi.org.in पर जाकर स्कीम के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। जो FAQs यानी अक्सर जो पूछे जाने वाले सवाल हैं वो यहां पर आपके लिए आसानी से बने हैं। हेल्पलाइन नंबर्स भी आपको बता दें, 022-226-02201 और 022-226-02944। ये हेल्पलाइन नंबर आरबीआई के है। अगर आपके पास कोई समस्या है तो आप इन हेल्पलाइन नंबर्स पर भी सवाल कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो अलग अलग बैंक्स हैं वो भी अपने अपनी हेल्पलाइन नंबर्स के जरिए आप तक पहुंचने की जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि अगर सरकार को पुराने नोट वापस लेने ही थे तो फिर 2000 रुपए के नए नोट्स जारी करने की क्या जरूरत थी? आर्थिक मामलों के सचिव ने इसका जवाब दिया है। आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। Now the challenge before the government was to replace the old 1000 rupee and 500 rupee notes as quickly as possible. So if you are printing the same number of pieces in 2000 rupees, it will enable us to change a higher value of currency within a short period of time. So the first reason was the logistical reason of making it convenient for the people to convert, to exchange their old notes or deposit their old notes and get the equivalent or whatever value, I mean the quantum, whatever quantum they wanted to draw. That was the first reason, the logistical reason. Second thing is that between 2000 2001,
when 1000 rupee notes were introduced, and now 15 years have gone and the value of rupee has also depreciated. So that also had to be kept in mind. The third point I would like to mention is that the Reserve Bank of India is going to monitor and monitor and regulate the release of 2000 rupee notes. And in the due course, in the next few months, the 1000 rupee notes will also be brought into the market with a completely new design and new dimension, new design, new color combination, which will look distinctly different from the old one. And we're heading for a short break. We'll get answers to more questions and queries that you have on this issue. Stay with us. एक बार फिर स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में, और ये कार्यक्रम सीधे आपसे जुड़ता हुआ, और इस सीरीज में आप अपने सवाल कर सकते हैं। ट्विटर और जीमेल के जरिए भी आप हम तक पहुंच सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि जो पहला ट्विटर का सवाल है किसका है और क्या जानना चाहते हैं नए नोट और नई पहल से जुड़ा हुआ। अभी किसानों के पास बैंक खाते नहीं है, तो क्या आप नए खाते खोल सकते हैं और इसमें कितने पैसे जमा किए जा सकते हैं? रमेश झा जी जानना चाह रहे हैं। कौशिक साहब, आप सवाल लेना चाहेंगे? बिल्कुल जी। देखिए, इसमें पहली चीज ये है कि जो जनधन योजना के तहत कोशिश ये की गई कि हर एक व्यक्ति का खाता हो, और बहुत सारे खाते देश में खुले, करोड़ों खाते खुले हैं, तो बहुत कम लोग हैं जिनका खाता नहीं है। और उसके साथ में दूसरी चीज ये है कि आपका खाता नहीं तो आप खोल लीजिए। आपको सिर्फ अपना जो पहचान के लिए वोटर आईडी कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका पासपोर्ट है, इनमें से कोई भी कागज ले जा करके आप अपना खाता खोल सकते हैं। और एक बार आपका खाता खुल गया तो उसमें आप जितना पैसा आपके पास है आप जमा कीजिए। स्पष्ट रूप से उसका स्रोत आपके पास होना चाहिए। अगर आपकी फसल आई है तो आपके पास जो फसल का पैसा है उसको जमा कराइए। अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय से जो आपकी आय हुई है और उसके पास आपके पास रखा हुआ पैसा बचा हुआ भी, मैं तो ये कहूंगा जो गृहिणियों के पास भी पैसा रखा हुआ है वो भी उन्हें जमा करा देना चाहिए, क्योंकि वो पैसा उनकी बचत का है, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं इसमें। फिर तो बहुत सारी महिलाएं सोच रही होंगी कि अगर मेरे पास कुछ जमा पूंजी है तो अगर मैं बैंक में जाती हूँ तो बहुत सारे सवाल करने शायद किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कम से कम 2.5 लाख जो टैक्स एग्जेम्प्ट इनकम है उसके बारे में तो कोई सवाल नहीं कर रहा है, और इसलिए लोगों को जमा जरूर कराया जाना चाहिए। आइए देखते हैं अगला सवाल ट्विटर के जरिए अगर हम तक पहुंच पाए, और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन हमसे। चलिए, ये भी दिनेश खत्री साहब हैं। अभी बैंक अकाउंट में जो पैसे जमा किए जाएंगे क्या इसे साल की आमदनी में गिना जाएगा? क्या इसका अलग से रिटर्न भरना होगा? भट्टाचार्य जी, क्या आप आई थिंक इज एब्सोल्युटली, ये तो क्लियर साफ है कि अगर ये जमा करते हैं इसके ओवरऑल इनकम में गिना जाएगा ये, और इनको अकाउंट में रिटर्न जब भरेंगे ये, अगर ये इनकम टैक्स स्लैब में है इनको डिक्लेयर करना पड़ेगा, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि इनकी ये आय के मतलब मैचिंग हुई है कि नहीं, तो उनको मैच करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। पर जैसे वित्त मंत्री ने और जो फाइनेंस सेक्रेटरी ने भी कहा है कि अगर 2-2.5 लाख के बीच में अगर कोई डिपॉजिट हो उसके ऊपर ज्यादा स्क्रूटनी नहीं होगी। पर इनके हिसाब से जितनी, अगर मान लीजिए वो अगर पैसा वो एक्सचेंज करते हैं तो अगर वो उनको एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं कि ये मेरी कहाँ से आई है, तो वो इनकम में माना जाएगा उनको। All right, there. Let's look at our next question by Twitter. You can look at the next Twitter question. But before we take the Twitter question, we may have to take a short break. But the Twitter question is here. The question is from Mithali. She's asked, what are the options before tourists if I had some Indian currency few days back? An important question. Mr. Kaushik, would you like to answer for tourists who may have Indian currency? Also people who may have already traveled back to their countries. What provisions do they have to take care of the high denomination notes? See, up to 5,000 rupee, when you are going back, you can exchange it in foreign exchange again. So there is absolutely no problem. And if you want to go to the bank branches, you can exchange that also, showing the receipt of where you exchange these notes. If you have come from US, you have brought dollars, and you have exchanged the dollars at say airport or some exchange counter of the banks, you show that receipt and then you can definitely redeposit those money and get your currency. The important thing is you have to retain the receipt. You have to retain the receipt. They have made it very clear. The clarification they made it clear. You must have retain the receipt. That's the procedure. They also have a time till March 31st, 2017.
They can exchange it any time. And then if I can just slip in a question quickly. So what arrangements have been made at the international branches of your bank, especially Indians living abroad or people who have Indian currency who are not in India? What arrangements have been made abroad in the international branches of your bank? No, actually this is a legal tender in India. It is not a legal tender abroad. Okay. So this has to be deposited here, whether in NRE account or NRI account. Okay. And if they are not in country, they can authorize their relative here. They can send a authority letter by post, and this person who is depositing has to carry his ID card and go and deposit it in the bank. There is no problem. All right. अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ट्विटर के जरिए देखते हैं कि कहां से ये सवाल आया है और किस तरह का सवाल उनके जहन में इस वक्त उभर रहा है। महिलाओं को इस कदम से सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। मेरी सेविंग का क्या करना होगा, बहुत मुश्किल है। ये दिया खान अभी ये बहुत सारे लोग समझना चाह रहे हैं कौशिक साहब की मेरी तो लाइफ लॉन्ग सेविंग हो सकता है, मैंने 10 सालों से अपने बच्चे के गुल्लक में पैसे जमा करने शुरू हो गए किए हों और वो 4-5 लाख हो जाए तो क्या उस पर भी कोई सवाल करेगा? दिया, आप आराम से जाकर के बैंक में जमा कराइए और ये बताइए कि ये पैसा मेरा, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही आपसे पूछ सकता है तो उनको बताइए कि मेरा जो है इतने समय से बचाया हुआ पैसा है। वो बचाए हुए पैसे के लिए जो पिछले सालों की इनकम है वो इतनी होनी चाहिए कि एक महिला उस पैसे को बचा सकती है साधारण तौर पे। तो अगर वो उस रेंज के अंदर है तो आप समझिए आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको कोई उसके बारे में परेशान नहीं करेगा। ये बहुत स्वाभाविक चीज है कि महिलाएं कुछ न कुछ पैसा अपने पास बचा के रखती हैं, तो स्वागत है, उस पैसे का जमा होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए, आपका पैसा है वो। All right, let's look at our next question on Twitter. If you can have the question. The question is, what options Indian travelers have if they are traveling with Indian currency with them? Where can they exchange? The question is from Rahul Gupta. So if you understand the question, if they're traveling within India or abroad, what options do they have if they have Indian currency, especially the notes that are going to go? Rahul, if you have Indian currency and you are traveling in India, you just walk into any of the branch of any bank and they will exchange it for you. As rightly mentioned, that 4,000 rupees is the limit for a day, so you do that. If you are traveling abroad, when you return, you are still having the window open for you, so you can come back and then deposit. So for that, if you are coming up to 30th December, you can deposit in any of the bank branch. If you are returning after 30th December, then up to 31st March, you can deposit with the Reserve Bank of India regional offices which are open, and they will take application and deposit it. चलो तो इस कार्यक्रम में एक फिर से छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो सवाल और जवाब का सिलसिला लगातार जारी रखेंगे और देश भर से जो तमाम हमारे रिपोर्टर्स हैं उन्होंने भी इस पूरे दिन पर जो घटना स्थिति है उस पर निगाह रखी है और कहां कहां लोगों को क्या कुछ परेशानी हुई और क्या कुछ नई सुविधाएं आपके लिए सरकार और बैंक लेकर के आई आज के दिन और क्या कुछ आगे है सरकार और बैंक के पिटारे में, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए ये खास कार्यक्रम। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम और ये कार्यक्रम इंटरैक्टिव है, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और एक तरफ जहां नोट बदलने को लेकर लोग काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, वहीं दिल्ली के अस्पतालों के बाहर लोगों को नोट बदलने के लिए परेशानी न उठानी पड़े, इसके लिए बैंकों ने मोबाइल एटीएम वैन खड़ी कर दी है। इन मोबाइल एटीएम वैन से लोग अपने नोट बदल करके वापस जा रहे हैं। दिल्ली में एम्स अस्पताल के बाहर जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। अस्पतालों में मरीजों के रिश्तेदारों को नोटों की वजह से किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके चलते अस्पतालों के बाहर जो बैंकों की मोबाइल वैन खड़ी हैं जो नोटों को बदल रही हैं। एम्स के बाहर भी पंजाब नेशनल बैंक ने खास तौर पर एक मोबाइल वैन को खड़ा किया है जहां पर नोट बदले जा रहे हैं। हमारे साथ फील्ड जनरल मैनेजर डॉक्टर राजेश यदुवंशी जी हैं। सर, ये वैन लगाने का मकसद क्या है? इस वैन का मकसद यही है कि जो लोग बाहर से यहाँ इलाज के लिए आए हुए हैं एम्स में और उनको जो पुराना कैश लेके आए उनको दिक्कत ना आए कोई, क्योंकि उनका अकाउंट तो यहाँ होगा नहीं, तो उनको दिक्कत ना होगी। उनकी सहूलियत के लिए पंजाब नेशनल बैंक सोचा कि यहाँ मोबाइल वैन रखें और वहाँ पे 4,000 तक जो गवर्नमेंट ने कहा है वो एक्सचेंज करके इनको यहाँ पे करेंसी दें, जिससे उनको कोई दिक्कत ना हो दवाई लेने में, किसी भी तरीके से कोई खाना खाने में या ठहरना है कहीं भी खर्चे में उनको दिक्कत ना आए। तो वो हमारी एक कोशिश है, पंजाब नेशनल बैंक की ये कोशिश हम कर रहे हैं। पीएनबी की इस वैन पर आप देख सकते हैं काफी एक लंबी लाइन दिखाई दे रही है जहाँ पर लोग यहाँ पर पैसा बदलने के लिए आ रखे हैं। क्या कहेंगे, किस तरह की? सर, अभी सुबह तक परेशानी ये थी कि हम 500 का नोट लेकर दुकान में दवा लेने का, 100 का दवा लेने का, 500 का दवा लेना तब दे रहे हैं। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक ने ऐसा काम किया कि लगा जाए हम मरीज के इलाज के लिए यहाँ से पैसा चेंज करा हम लेकर अपनी दवाई ले लेंगे। हमारा नवादा जिला घर है, बिहार।
तो हम सोच रहे थे किसको पैसा हम देंगे, के हमरा से लेगा पैसा, कोई ने चीन पर्चे आदमी नहीं है। एम्स में आए थे इलाज करे लगी, एगो कहा कि रे जाओ उन्हें पैसा मने अथी हो रहा भांज रहा है। लगाई गई एकदम, ये काला जो रुपया था सब भारत के लिए बहुत अच्छा किया मोदी जी ने। हम लोग पब्लिक बहुत खुश है, लोगों की 50% तक परेशानियां खत्म हो गई हैं। इस तरह के मोबाइल वैन के जरिए न केवल मरीजों के रिश्तेदारों को सहूलियत मिल पा रही है, बल्कि वे लोग जो दिल्ली के बाहर से अपने रिश्तेदारों का इलाज कराने आए हैं उनको भी काफी फायदा मिल रहा है। कैमरामैन आरबी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो थोड़ी शुरुआती परेशानी जरूर है, लेकिन बैंक और सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ये जो परेशानी है उसका कुछ न कुछ जरूर हल निकाला जाए। People are enthusiastic about the effort that the government has made. They're facing difficulties, but they're enthusiastic. बिल्कुल सही कहा आपने। और कितनी खुशी लोगों को वो मोबाइल वैन देख करके हुई जब उनके पास ये परेशानी थी और तुरंत सोल्यूशन सामने दिखाई दी। प्रोफेसर साहब, लेकिन एक जो परेशानी हो रही है वो स्मॉल ट्रेडर्स को, जो कैश में बहुत ज्यादा डील करते थे, और तमाम देश भर से दिन भर लोगों ने ये सवाल किया कि अब क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग कैश में डील करते थे, सरकार तो कह रही है उन्हें कैशलेस इकोनॉमी की तरफ ले जाना है, लेकिन शायद ये आदत, ये समझाना थोड़ा मुश्किल होने जा रहा है। देखिए, अभी जो है ना अजय जी, कैश की जो बात है, हम पूरी तरह से इससे अभ्यस्त हैं। हमें कैश में डील करना बहुत अच्छा लगता है। तो जैसा भट्टाचार्य जी ने भी कहा कि कैशलेस सोसाइटी की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो अभी क्या है, इसकी बीच की जो स्टेज है वो लेस कैश सोसाइटी है। तो ये जो शुरुआत है ये लेस कैश सोसाइटी की तरफ जा रही है। फिर जैसे सुविधा बढ़ेगी, आपने जो बात कही थी उसमें जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, वो मोबाइल में आप किसी भी बैंक के खाते से किसी भी बैंक के खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप अगर दुकान पे खड़े हैं तो आप ग्राहक हैं और पूछ लीजिए कि भाई आपका खाता कौन सी बैंक में कितना है, और उसी समय पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। वो उनके मोबाइल पे आ जाएगा कि इतना पैसा इस खाते से मेरे पास आ गया, तो एक्सचेंज पूरा हो गया। तो उनको उतना सारा पैसा संभालने की जरूरत नहीं है, उस जोखिम को दुकान से बैंक तक ले जाने की जरूरत नहीं। कई दफे आप सुनते होंगे, देखते भी हैं कि लूट की घटना हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। तो वो इन सब परेशानियों से आप बचेंगे। और इसके साथ जो है, जब साफ सुथरा हिसाब की तरह रहेगा, देश तो तरक्की करेगा उससे, क्योंकि जो टैक्स है वही तो देश की तरक्की के लिए काम में आता है। जी बिल्कुल, राइट। So, Mr. Bhattacharya, if I can turn to you now, we see people are facing some inconvenience, but they're enthusiastic about the step that the government has taken. So, if we talk about the economic reforms that the government has been taken, we talk about Jan Dhan Yojana, GST, and now the scrapping of high denomination note to check black money. What do you see as the entire vision of the government for the country as far as the economy of India is concerned? Well, in brief, you have to see this step in the context of what happened just 2 months ago, which is the Income Disclosure Scheme 2016. Right. The Income Disclosure Scheme gave the Indian citizens, taxpayers, an opportunity to come clean after paying a penal rate of interest on income that was unaccounted and undisclosed. Now, having done that, itself created this moral hazard of sorts, that what happens to the honest taxpayers. So what has happened now is very logical and is correct, and it is important that the honest taxpayers also do believe that for having remained honest, they are on the right path. Right. So I think this is the first important benefit of this kind of a reform that you are seeing. Second point, just to give you a broad macro view, 88% of India's transactions are in cash. It's a huge amount. In China it is 60%. So if we are looking at China, at least we should go towards 60. This is one big step to take from 88% to 60% at least. Second, if you take the denominations of 500 and 1000 rupees, almost 17 lakh crore money was seen to be circulating account of 500 and 1000 rupee note. Now if you assume that 20% of the economy is black, and you apply the 20% yardstick on the 500 and 1000 rupee currency, you get a black money of 3.4 lakh crore, which is around 2% of GDP. So what you're going to see is that assuming that guys who are having black money will not come forward and allow that money to be destroyed, or pay up taxes, and that money comes into the system. So essentially you are talking about 2% of your GDP is going to be either cleaned up or get destroyed.
बहुत बहुत शुक्रिया। 2% जो जीडीपी है उसको क्लीन अप या फिर डिस्ट्रॉय, या कहें कि अगर जीडीपी के 2% की बढ़ोतरी होती है तो ये शायद अभी तक का, अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित होने जा रहा है, गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक कुमार भट्टाचार्य इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सुबोध कौशिक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना है, लेकिन इस सीरीज को हम लगातार इसको जारी रखेंगे और नए मुद्दों के साथ, आपके नए सवालों के साथ फिर से हाजिर होंगे। निगाह रखिए डीडी न्यूज पर, क्योंकि खबरों का सिलसिला और इस तरह के जो प्रोग्राम, इस मुद्दे से जो जुड़े सवाल और जो प्रोग्राम है, वो लगातार हम दूसरे फॉर्मेट्स में आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। Absolutely, in this program, नई नोट नई पहल, we hope we could solve some of your doubts. We'll join you again later. Thank you very much for joining us. Good evening. नमस्कार।